Jai Hind. Today we are going to start Truth Without Apology, new chapter. To know yourself, watch yourself. अपने आप को जानना है तो अपने आप को देखना पड़ेगा. First I will read out in English, then I will explain in Hindi. Okay. Who you really are is shown not by what you claim but by what you pursue. What occupies your minds and what you commit to. If you truly want to discover who you are, don't start by asking philosophical questions. Start with facts, start with observations, not of the world but of yourself. See where your time goes. See what repeatedly fills your thoughts. See what kind of works earn you money. See where that money is spent. See what your head secretly longs for. See what you avoid. See what you are afraid to lose. And you will begin to know who you are, not in theory but in truth. We all carry respectable self-images. I am spiritual, or I am care about justice, or I want to grow. But look closely. Most of these are aspirational claims, not honest confessions. The ego wants to appear evolved, but identity is not revealed by what you say you want. It is revealed by what you actually change. You are not your declared values, you are your lived patterns. Where your feet walks, where your eyes lingers, what keeps you restless at nights. These are the true indicators. These are your teachers. To know yourself, don't look at what you celebrate. Look at what you tolerate. Don't look at what you post. Look at what you protect. Don't look at your wishes. Look at your compulsions. The honest self-observers begin to see, I am not what I thought I was. I am deeply conditioned. My fears, cravings and attachments run deeper than I admit. These things is painful, but it is also the beginning of freedom. Knowing yourself does not mean building a better image. It means watching the false one crumble. So don't be in a rush to change yourself. First be silent and watch. Let the truth emerge. Low, raw, unfiltered. To know yourself is not to create a self. It is to become aware of how much of you is borrowed, automatic and false. To know yourself, watch yourself. Honestly, repeatedly, relentlessly. This alone is the beginning of a real spiritual life. This was in English. Now I will explain in Hindi. दो मेन मकसद है हमें हिंदी में बताना सभी को. ट्रूथ विदाउट अपोलॉजी, ये तीसरा चैप्टर है. अपने आप को जानना है तो अपने आप को देखना पड़ेगा. आप असल में कौन हैं, इस बात से नहीं पता चलता कि आप क्या दावा करते हैं, बल्कि इस बात से पता चलता है कि आप किस चीज का पीछा करते हैं. आपके मन में क्या चलता है और आप किस चीज के प्रति समर्पित हैं. अगर आज असल में आपने अपने आप को जानना चाहते हो तो इसकी शुरुआत दार्शनिक प्रश्नों की तरह मत करो. दार्शनिक बनने की नहीं करना है. अभी मैं दार्शनिक की तरह अपने आप को देख रहा हूं. तथ्यों से शुरुआत करें. तथ्य देखें. अवलोकन से शुरू करें. अवलोकन देखें क्या बदल रहा है, क्या हो रहा है अंदर में. दुनिया का नहीं बल्कि स्वयं का अवलोकन करो. क्या घटित हो रहा है तुम्हारे साथ सुबह से शाम तक. यही बस बदलाव है. पहला देखो आपका समय जाता कहाँ है. अगर कन्फ्यूजन है ना अभी क्या करें क्या नहीं करें, तो पहले देखो आपका समय जाता कहाँ है. देखें कि आपके विचारों में बार बार क्या आता है. क्या चीज़ आपके विचारों में बार बार आ रही है. डर आ रहा है, भय आ रहा है, कामनाएं आ रही हैं, या फिर कोई ज़्यादा ही इच्छाएं प्रज्वलित हो रही हैं. देखिए कि किस तरह के काम से आपको पैसे मिलते हैं. देखिए कौन से काम से आपको पैसे मिलते हैं. क्या दिन भर मरने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, क्या बहुत ही तगड़ी गुलामी करने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, या फिर किसी जानवर की हत्या करके क्लाइमेट को प्रदूषित करके आपको पैसे मिल रहे हैं. तो ये आपको देखना भी आपको पैसे मिल रहे हैं, आप काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो. देखो कि जो पैसा आप कमा रहे हो वो कहाँ खर्च कर रहे हैं. पता लगे सारा पैसा तो कमा रहे हो दिन रात एक कर करके, लेकिन अपना सारा पैसा बर्बाद करो उन्हीं कामों के लिए जिसके लिए हम
प्रकृति को हम बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति को बर्बाद करने के लिए पूरा पैसा अपना झोंक रहे हैं, तो फायदा क्या है? अपने आराम से बैठोगे। देखो तुम्हारा दिल चुपके से क्या चाहता है। वैसे तो हम आध्यात्मिक बने रहते हैं, लेकिन देखिए क्या देख रहे हैं हम, क्या चाह रहे हैं, कैसी हमारी नज़र है, क्या ले रही है हमारी आंखें बाहर से। तो ध्यान रखिए ये। देखिए कि आप किस चीज़ से बचते हैं, आप किस चीज़ से बचते हैं। देखें कि आप क्या खोने से डरते हैं। क्या आपके चीज़ में ऐसी चीज़ है जो महत्वपूर्ण है, जिसको आप खोने से डरते हो, ये देखिए। और आप जानना शुरू कर देंगे कि आप कौन हैं। थ्योरी में नहीं बल्कि सच में। सच में आपको पता लग जाएगा कि आप हैं कौन। हम सम्मानजनक सेल्फ रखते हैं। हम अपने आप को समझते हैं भी मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, चाहे मैं करता कुछ भी हूँ। मैं आध्यात्मिक हूँ, या मुझे न्याय की परवाह है, या मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन ध्यान से देखें, इनमें से ज़्यादातर बातें सिर्फ उम्मीदें हैं, ईमानदार कबूलनामे नहीं। अहंकार विकसित दिखना चाहता है, लेकिन पहचान इससे जाहिर नहीं होती है कि आप क्या चाहते हैं। यह इस बात से पता चलता है कि आप असल में किस चीज़ का पीछा करते हैं। सोचने से नहीं चलेगा बात। आप कर्म क्या करते हो, काम दिखाओ, काम क्या करते हो। आप अपने बताए गए मूल्यों से नहीं बल्कि अपने जीने के तरीकों से पहचाने जाते हैं। क्या जी रहे हो, कैसे आपका जीवन है, मरे मरे जी रहे हो या ऐसे ही रोब से जी रहे हो। जहाँ आपके पैर चलते हैं, जहाँ आपकी नज़रें ठहरती हैं, देखिए कहाँ आपकी नज़रें ठहरती हैं। आकर्षण कहाँ है, किस चीज़ का आकर्षण है? कुछ जानने के लिए या भोगने के लिए है? जो आपको रात में बेचैन रखता है, रात को नींद नहीं आती, बहुत से पड़े रहते हैं बिस्तर में 10-10 घंटे के लिए, 5-5 घंटे के लिए, नींद नहीं आती उनको। वो बस कल्पनाओं में लगे रहते हैं। कल क्या करना है, कल कहाँ से भोगना है, कहाँ से किससे कितने वसूलने हैं, किसकी चुगली करनी है। तो देखिए आप क्या सोचते हैं। यही सच्चे संकेत हैं, यही आपके गुरु हैं। यही गुरु हैं जो आपके साथ घटित हो रहा है, और कोई आपके बारे गुरु नहीं बताने वाला आपको। अपने आप को जानने के लिए ये मत देखो कि आप जश्न क्या मनाते हो, बल्कि ये देखना है कि आप सहन क्या करते हो। आप ये मत देखिए कि आप पोस्ट क्या करते हो, बल्कि ये देखो कि क्या है जिसकी पोस्ट करने से बचते हो। अपनी इच्छाओं को मत देखिए, बल्कि अपनी बाध्यता को देखिए। इच्छाएं मत देखिए, देखिए बॉन्डेज क्या क्या बंधन है आपके जीवन में। ईमानदार आत्मनिरीक्षण देखने लगता है कि मैं वो नहीं हूँ जो सोचता था, जो मैं था। ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो, कितनी आपके अंदर कमियां हैं। उसके बाद सुधार के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं गहराई से वातानुकूलित हूँ। मेरे डर, लालसा और लगाव जितने मैं मानता हूँ उससे कहीं ज़्यादा गहरे। इससे सब पता चल जाएगा भी मैं तो मानता था अपने आप को मैं तो बहुत ही शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, मैं तो मेरे अंदर कोई हिंसा नहीं है। लेकिन जैसे आप अपना अवलोकन करोगे तो आपको पता चल जाएगी आपके अंदर कितनी तरह की कमियाँ हैं। यह देखकर दुख होता है, दुख तो होगा, लेकिन ये आज़ादी की शुरुआत हुई। जब आपको पता चल जाएगा आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, तो ये तो दुख तो होगा। दुख तो बहुत कमों को ही होता है, वो तो उसी के साथ चलते रहते हैं। लेकिन जिसको दुख होगा उसको शुरुआत हो जाएगी कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये मुझे बदलाव करने हैं। खुद को जानने का मतलब बेहतर इमेज बनाना नहीं है, इसका मतलब है झूठी इमेज को टूटते हुए देखना, अपने बंधनों को टूटते हुए देखना, अपनी झूठी मान्यताओं को, अंधविश्वासों को टूटते हुए देखना। इसलिए खुद को बदलने की जल्दी न करें, जल्दी न मनाएं कि 2026 अभी आने वाला है तो मैं कल ही सब कुछ बदल दूं। पहले देखिए आपके अपने जीवन से क्या क्या कचरा है जो आपको बाहर निकालना है। पहले चुप रहें और देखें, सच्चाई को सामने आने दें बिना किसी फिल्टर के। सच्चाई देखिए क्या सच्चाई है। खुद को जानना खुद को बनाना नहीं होता, यह इस बात के प्रति जागरूक होना है कि आप में से कितना हिस्सा उधार लिया हुआ है, ऑटोमेटिक और झूठा है। क्या क्या आपके अंदर झूठ है, क्या उधार लिया हुआ है। मैक्सिमम चीज़ें शरीर, समाज और संयोग से हमने ली हुई होती हैं। शरीर कुछ कह देता है, समाज कुछ कह देता है कि ऐसे करो वही हम मानने लग जाते हैं। कुछ संयोग वैसे आ जाती हैं हमारे पास चीज़ें, और क्या करते हैं। अपने आप को जानना है तो अपने आप को देखिए, लुक योर सेल्फ। ईमानदारी से, रिपीटेडली, बार बार, रिलेंटलेसली, लगातार, यही सच्ची आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। अपने आप को देखिए। आज का चैप्टर खत्म हो चुका है, ये तीसरा चैप्टर था, टू नो योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ। और आज नया साल शुरू होने वाला है, अभी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो बहुत सी पब्लिक लगी होगी नए साल का जश्न मनाने के लिए। लेकिन देखिए इस बार नए साल में आपके लिए क्या नया है। क्या पिछली बार जो दारू पी थी वही दारू पीनी है, उतनी ही दारू पीनी है, या छोड़नी नहीं है?
पिछली बार कितने जानवरों का वध कर दिया था हमने, हमारे भोग के लिए, हमारी खुशी के लिए। क्या इस बार कुछ कम करेंगे या नहीं करेंगे? पटाखे छोड़े थे पिछली बार भी, इतना पोल्यूशन हो गया दिल्ली के अंदर, देखिए आसपास के इलाकों में देखिए, तो क्या फिर से पटाखे फोड़ने हैं? कैसे मनाना है आपको नया साल, ये आप देखिए। चुनाव बदलिए, कैसे बदलोगे? जानो पहले अपने आप को, क्या गलत कर रहे हो, कहाँ बंधे हुए हो, क्या मान्यताएं हैं, क्या अंधविश्वास है जो आपको परेशान करे हुए है, जो आपको बंधनों में धकेलता जा रहा है। और ये तीसरा चैप्टर अभी ख़त्म हो चुका है, तो अभी धीरे धीरे करके हम सारी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पहले इन तो जिसको भी अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और परिवर्तन लाना है जीवन में, यही उद्देश्य है। और 2026 में अपने कुछ लिस्ट बनाइए भी, क्या क्या मेरे अंदर कमियां हैं, क्या क्या मुझे बदलाव करने हैं। ऐसे तो पता नहीं कितने साल नए आए हैं और चले गए हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। इस साल को हमें महत्वपूर्ण बनाना है। जो पाश्विक वृत्तियां हैं उनको हमें दूर भगाना है, पब्लिक को उजागर करना है, जो सही काम है उनकी तरफ अग्रसर होना है। तो यही आज का चैप्टर है। और अभी इसको अच्छे से वॉच करिए और सुनिए। कुछ गलतियां हो तो सुधार करेंगे, कुछ आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ मेरी गलती रही है। बाकी मुझे ये कंप्लीट तो करना ही है। बहुत ही अच्छी बुक है, रिटन बाय आचार्य प्रशांत। और गीता सत्रों में आप भाग लीजिए, ज्वाइन कीजिए www.acharyaprashant.org पे जाके किताबें मंगवा सकते हैं बच्चों के लिए। बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें हैं वहाँ पर, सस्ती किताबें हैं। ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, 21 रुपये में ई बुक है, इतनी सस्ती बुक, और वो भी आचार्य प्रशांत जी के द्वारा लिखी हुई। तो धन्यवाद।